तो कैसा फील होता है पाकिस्तान की जर्नी किसी दूसरे मुल्क में रिप्रेजेंट करना हो? क्या फीलिंग होती है, जरा उसके बारे में बताएं। Honestly, it's a tribute to my nation, and I'm glad and happy to do it, serving and like doing the national duty. Yeah. I'm proud of it, and like it's amazing. Honestly, जब आप जाते हो, or like when you represent your country and you know that you're doing something you love and something you're really passionate about deeply. So it hits you on different levels. Exactly. फुटबॉल को वैसे भी बड़ा मेल dominating sport समझा जाता है. I would not agree with that now. Criticism in the comments as like, you know, we don't wear hijabs and you know we are women and you know all about the gender discrimination in our society and in our culture. Assalamualaikum ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द लोकल पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट रागिब और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक स्पोर्ट्स वुमन है और उनका ताल्लुक एक ऐसी स्पोर्ट से है जो कि दुनिया भर में बहुत मशहूर है। जी हाँ, आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। वी हैव आवर नेशनल फुटबॉल प्लेयर विद अस जो कि पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम में खेलती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनली। Please welcome, we have Anushe Usman with us. Thank you so much, Anushe, for taking out time and coming to the local podcast. It's feel really great to have you here. No problem, pleasure to do it. Okay, talking about your inspiration and the journey. First of all, football ने आगे professional लेके जाना फुटबॉल को, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं किस तरीके से? Basically, my inspiration was Lionel Messi. मैं उसको पहले शुरू में बहुत ज़्यादा देखती होती थी because I was like crazy about him and like my journey began when I was only 10 years old. My parents wanted me to join like a physical activity. उनका था कि किसी चीज़ से like situated रहूं, घर में नहीं बैठना था जी। like 4 years से like when I was 4 years old तो तब से मैंने swimming start की थी. I've been in the like you know fitness field for a very long time now. तो फिर उसके बाद मैंने जो football join किया उसके बाद जाके मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड देन आई वाज लाइक ना मैन दिस इज डिफरेंट दिस कैन टेक मी समवेयर एंड इट डिड परफेक्ट। सो फेवरेट प्लेयर लियोनेल मेसी है? हाँ जी, मेसी। Okay, and favorite team? My team is not Inter Miami. Their playing style and all वगैरह is very different. Exactly. My favorite team currently is Manchester City. Oh, वैसे होता यही है कि जिधर मेसी जाता है वही फेवरेट टीम बन जाती है मेसी फैंस। I know, like I used to be a die-hard Barcelona fan at first, but then all the players, all the legends left, so I had to. Exactly, पहले तो एल क्लासिको का बहुत क्रेज होता था। Messi versus Ronaldo. That used to be a hell of a match. Exactly. Okay, फिर talking about आप national team में किस तरीके से select हुई, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्योंकि that's a very big achievement actually. Of course. Basically, when I was like 12 years old, that was the first time I got selected for the Pakistan national under 16 women's team. और like मुझे खेलते हुए भी इतनी देर नहीं हुई थी, सिर्फ 2 साल हुए थे। फिर उसके बाद under 16 national championship हुई थी in Lahore. We won the championship. I played from MTFA. हम लोग जब जीते, then that's when I got selected. But this time इस दफ़ा trials हुए थे and that's how we got selected for the women's national team. That's just one now. So अगर नेशनल टीम की बात करें, पाकिस्तान की नेशनल टीम, तो इट्स जस्ट दिस ट्रायल जो पास करने होते हैं या कोई और भी चीजें होती हैं? नहीं, इट्स डिफरेंट एवरी सिंगल टाइम। इस एक दफ़ा ट्रायल्स से, पिछली दफ़ा भी ट्रायल्स थे, नेपाल वाले टूर में भी ट्रायल्स थे, उसके बाद जाके दोबारा जब सऊदी अरेबिया वाला हुआ था उसके अंदर भी ट्रायल्स थे। लेकिन इस दफ़ा द न्यू वे ऑफ सेलेक्टिंग, यूजुअली दिस इज़ हाउ इट रन्स। हमारी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, अभी रिसेंटली हुई है इन इस्लामाबाद, द नेशनल वुमेन्स कप। अच्छा। तो वो खेले से उसके थ्रू सिलेक्शन हुई थी एंड मेनी अदर प्लेयर्स आल्सो गॉट सिलेक्टेड। ओके, दैट्स ग्रेट। तो कैसा फील होता है पाकिस्तान की जर्नी किसी दूसरे मुल्क में रिप्रेजेंट करना हो? क्या फीलिंग होती है, जरा उसके बारे में बताएं। Honestly, it's a tribute to my nation and I'm glad and happy to do it, serving and like doing the national duty. I'm proud of it. And like it's amazing honestly जब आप जाते हो और like when you represent your country and you know that you're doing something you love and something you're really passionate about deeply, so it hits you on different levels. Exactly, and the feeling national anthem किसी दूसरे मुल्क में बड़ा hit करता है। Goosebumps man. True.
अच्छा, टॉकिंग अबाउट एनी फेवरेट मेमोरेबल मैच दैट यू स्टिल रिमेंबर, जिसमें आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो या पाकिस्तान जीता हो, कोई उस मैच के बारे में कोई हाइलाइट्स? मोस्ट मेमोरेबल वन वाज सऊदी अरेबिया वाला, जो वो थी फ्रेंडली टूर्नामेंट थी। अच्छा, उसके अंदर बेसिकली वी वॉन, हम लोग रनर्स अप से, लेकिन इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट एंड अ माइलस्टोन फॉर अस। व्हाई? बिकॉज वी मेड हिस्ट्री, ठीक है ना, एंड वी वॉन द लास्ट मैच एज वेल, द फाइनल वन। एंड आई नो कि वो मेरे लिए इतना ज़्यादा लाइक यू नो डिफरेंट और लाइक अच्छा इसलिए था, एंड आई वुड ऑलवेज cherish that memory my whole life. Why? Because when I stepped out of the field, or like sorry, when we started celebrating and all, so tab my coach came to me and he was like, good work Anusha, I'm proud of you. Honestly, I went to the dressing room, I did my happy dance. That's how happy I got. So it was great. Or like tab like bahut acha tha, and everything was perfect at that time. अच्छा अनुषा, एज अ नेशनल प्लेयर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, शुरू में तो खैर इतनी नहीं होती होंगी, लेकिन एज अ नेशनल प्लेयर बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब वो मीट ना हो तो उसके बारे में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन को पहले मीट करना है लाजमी, और कभी कभी वो मीट नहीं भी होती हैं, ऑब्वियसली यू गाइस लॉस्ट एज वेल, तो क्या फीलिंग होती है, किस तरीके से उसे डील करते हैं? Of course, like it's very sad for us and all together because we put in a lot of hard work, and Exactly. when it does not pay off, तो obviously it does feel sad. लेकिन हार जीत तो फिर अब जिंदगी का भी हिस्सा है और गेम का भी पार्ट है। तो लाइक हम लोग अपने लॉसेस को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, इन माय डिफेंस एज वेल, कि हम लोग बेसिकली अगर हम लोग हारते भी हैं, we take a day to grieve and then we move on. We have to accept it and we have to look at the next game and focus on the next one. और दूसरी बात, हम लोग अपनी मिस्टेक जो हमने उस गेम में किया, we make sure कि we don't repeat those mistakes in the next match, and we practice and we know what to work on. And फिर उसके बाद we analyze our matches as well, we watch it again, we know, और like analyze करते हैं, interpret करते हैं what we can get from that, we work on our strengths and work on our weaknesses as well. And that's how we moved forward. How do you guys handle criticism as a national player? Criticism There's a lot of criticism out exactly. there. Criticism in the comments as like, you know, okay, we don't wear hijabs, and you know, we are women, and you know all about the gender discrimination in our society and in our culture and in Islam as well. I respect that a lot, but the thing is that since we're playing and we're putting ourselves out there, so we don't really care about the comments and the criticism. Because why? अगर वही दिल पे ले लेंगे तो फिर तो ऐसे नहीं होता. It's all about the mentality. Honestly, I would put talent, hard work नीचे, mentality ऊपर. It's all about the mindset. Exactly true. Talking about gender discrimination, जिस तरीके से आपने बात की, फुटबॉल को वैसे भी बड़ा मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट समझा जाता है. I would not agree with that now. But I will yeah, also continue. not agree, लेकिन कहा यही जाता है काफी लोगों की मेंटालिटी अभी भी पाकिस्तान में ऐसी ही है. Of course, it's like because of their narrow-mindedness, and it's not that. I mean, उनकी भी गलती नहीं है. It's because of the generation gap as well. सही बात है. तो हाउ डू यू, क्या चैलेंजेस शुरू में फेस है, क्योंकि यू आर ऑब्वियसली अ गर्ल, इस फील्ड में आ रही हैं, इस स्पोर्ट में आ रही हैं, तो किस तरीके से चैलेंजेस आपने फेस किए, कोई इनिशियल चैलेंजेस थे? Of course, there were a lot, and when I say it, I speak for all the women out there, honestly. पहले शुरू में था कि my family did not support me as much, but when my mother saw me play and like जब उन्होंने किया, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया. Now they watch all my matches as well, and they're happy to see me play as well. Even yesterday my mom came to see me play as well. और इसके अलावा हाँ, दादी जो थी वो बहुत कहती होती थी कि क्या करना है खेल कर, छोड़ दो, लड़की हो ऐसे नहीं करती हैं वगैरह, इतना शौक नहीं, मतलब सही है जितना शौक पूरा करना था नहीं. तो मैं आगे से कहती हूँ, मैं लाइक ऑब्वियसली आई डोंट फाइट बैक और लाइक आर्ग्यू विद हर, बट आई एम जस्ट लाइक कि यू वॉच मी, ठीक है ना, बिकॉज आई चोज दिस प्रोफेशन फॉर अ रीज़न. तो लाइक उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं जो हुंजा, गिलगित और जो नॉर्थ साइड पे रहते हैं ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए इट्स वेरी हार्ड. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड द फैसिलिटीज एंड द इक्विपमेंट, जिसकी वजह से वो भी ग्रो कर सके और यू नो दे कैन वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड इम्प्रूव एंड ऑल वगैरह. सही बात है. लेकिन अब जाके आई सी अ डिफरेंस. अब
इस वाली चैम्पियनशिप में काफ़ी हुंजा गिलगित के प्लेयर्स भी खेले थे, तो इट वाज वेरी गुड टू सी देम प्ले के उन लोकल प्लेयर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली टू शोकेस देयर टैलेंट्स एज वेल। सही बात है, सही बात है। टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट, अगर हम स्पोर्ट की बात करें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, टू बी ऑनेस्ट मैं भी टेबल टेनिस प्लेयर रह चुका हूँ। दैट्स ग्रेट। तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट दी जाती ऑफ है कोर्स। और बाकी स्पोर्ट्स सारी एक ही लाइन पे खड़ी हैं। तो यू बीइंग अ नेशनल प्लेयर, आप किस तरीके से देखती हो कि फुटबॉल किधर अभी क्या कंडीशन है फुटबॉल की और कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? I would say a lot, लेकिन it's also going to take a lot of time. Why? Because हाँ cricket is our national sport now. National sport अब actually. हो गई है, पहले हॉकी थी, लेकिन अब they consider it. Exactly. Why? Because the support and like और वर्ल्ड वाइड लाइक हम आज हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने लाइक पूरी दुनिया आती है। दिस इज समथिंग पीपल लिव फॉर। अदर देन दैट आई वुड से कि सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, द थिंग इज कि बाकी स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता, प्रेफरेंस भी नहीं दी जाती है नॉल वगैरह। इट्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल, इट्स ऑल्सो रूइनिंग दिस ब्यूटिफुल स्पोर्ट। लेकिन अदर देन दैट हाँ इसको बहुत देर लगेगी। अभी जैसे फीफा रैंकिंग में हम लोग बहुत बेहतर हो गए थे, हमारी वुमेन्स टीम बहुत बेहतर हो गई थी, मेंस भी, बिकॉज वी डिडंट प्ले फॉर 1 year। हमने विंडोज बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल विंडोज मिस आउट की, इसकी वजह से वी आर लाइक लैकिंग नाउ। लेकिन नाउ वी आर गोना ब्रिंग द ह्यूज डिफरेंस इंशाल्लाह। रैंक है क्या हमारी अभी वुमेन्स टीम? अभी इट्स क्वाइट लो मैन, इट्स लाइक वेरी सैड। तो आई गेस 157 और समवेयर इन 190s। बट टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज़ अनुषा, अगर हम फैसिलिटीज़ दे दें बाकी स्पोर्ट्स को भी, आप जैसे अरशद नदीम फॉर एग्जांपल, अ ग्रेट एग्जांपल, ऑनेस्टली द बिगेस्ट एग्जांपल। इससे ये साबित होता है कि वी हैव टैलेंट लेकिन सपोर्ट नहीं किया जा रहा, फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है, आप एज अ नेशनल प्लेयर किस तरीके से इस चीज़ को देखी हो कि किस तरीके से चीज़ों की करने की बहुत सख्त ज़रूरत है? टाइम तो लेगा लेकिन अभी से ही इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। Honestly, I would say कि they should invest a lot in it। और दूसरी बात है ये लोग हमारे when I speak about football, तो I would say कि ये लीग ज़्यादा करवाएं ताकि local players get to show their talent as well, and we get the opportunity to play together, to build chemistry and coordination in order to move forward as a team, because football is not a solo sport. It's all about teamwork. Teamwork is going to make the dream work, right? तो ज़्यादा लीग्स कराएंगे, साथ खेलेंगे, कैंप्स लंबे होएंगे और आपस में ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री बिल्डअप होएगी और दैट्स हाउ वी कैन इम्प्रूव टुगेदर एज वेल। टॉकिंग अबाउट योर कैंप्स एंड स्टेडियम्स भी हैं आई थिंक फुटबॉल के, पंजाब स्टेडियम और में, पंजाब स्टेडियम, जिन्ना स्टेडियम, ओह यस, एबटाबाद में भी है। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो उस तरीके से प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। मैंने कभी पंजाब स्टेडियम में फुटबॉल, जिन्ना स्टेडियम इज क्वाइट मेंटेन्ड नाउ, लाइक फ्रॉम लाइक अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर है। इवन अब तो लाइक जो मैचेस थे कैम्बोडिया और सऊदी अरेबिया के साथ वो जिन्ना स्टेडियम में ही हुए थे। That's great। तो अच्छा, क्योंकि आप कैंप्स वगैरह भी काफ़ी जाती रहती हैं, तो डू यू सी न्यू इमर्जिंग प्लेयर्स, यंग टैलेंट सामने आ रहा है, उनके पास टैलेंट मौजूद है एंड दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन फुटबॉल? ऑफ कोर्स, अभी भी इस दफ़ा a lot of young players got selected। अच्छा। Even like हमारे क्या कहते हैं कैंप में अभी 15-16 year olds भी हैं, and like उनकी outstanding performances होती हैं, and they are ready to work on it, and they are working on it, like besides camp and all वगैरह वो अपने local clubs में या जहाँ भी खेलते हैं they are putting in a lot of efforts to make this work। That's great। अनुषा, as a footballer क्या skills होनी चाहिए फुटबॉलर में आपकी नज़र में? Honestly, I wouldn't say कि skills आपको इतने ज़्यादा fancy चाहिए। You don't have to be Neymar Junior। I would say कि you should be like Kevin De Bruyne, KDB style। It's all about the mindset, as I said before as well। आपके अंदर game sense होनी चाहिए और आपका जो playing का way है वो बेशक simple हो। Play simple football। I'm not saying safe football, I'm saying simple football कि you know when to convert, you know when to flourish forward, and you know कि मैंने कब force नहीं करना play, ठीक है ना? There are a lot of things। I won't say कि skill की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ hard work की ज़रूरत है। That's the difference between Messi and Ronaldo। Messi has God gifted talent। Ronaldo
worked out his entire life. True, He's true. still working so hard right now just to make it work, you know. He's all about the hard work, True, all about the exactly. discipline, all about the mindset as well. Exactly, exactly. Anusha, what advice will you give to young talent who is coming towards football? क्या advice as a national player आप देना चाहोगी उनको? मैं honestly यही advice दूंगी, and it's not only just football or any other sport. I would say कि if there's something you're passionate about, could be art, could be music, could be any sport, so I would say go and pursue it. See where it takes you, and it's not about the destination. It's always about the journey. It's about the things you're gonna learn in your journey. True. Things I learned from football, from my camps, 3 major things: gratitude, discipline, and patience. Oh, And it took that's me, or somewhere in life, honestly, I'm a very different person now. So like, it's good. Why? Because और हमेशा learning और growing mindset से जाओ, बहुत कुछ सीखोगे, and you are gonna become the best version of yourself. So always go for it and never leave something behind you're passionate about. I would say pursue it. What a great advice, what a great advice. अच्छा अनुषी, वैसे फुटबॉल को बड़ा क्रूअल स्पोर्ट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इंजरीज एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं प्लेइंग में ही, course. आपका काफ़ी कुछ हो जाता I've है. been there. एग्जैक्टली. लेट्स टॉक अबाउट योर इंजरी. थोड़ा सा बताओ कि किस तरीके से इंजरी हुई और क्या फीलिंग थी? Basically, I was playing final खेले से Army versus Wabda. I was अच्छा. playing from Army और कोयटा नेशनल चैम्पियनशिप, वो भी रिसेंट ही हुई है, अभी थी पहले नहीं हुई. तब फाइनल मैच में आई गॉट इंजर्ड और मुझे ACL हो गया था. आई डिड नॉट नो दैट. फिर उसके बाद लाइक काफ़ी पेन होती रहती थी. आई वाज लाइक ना, दिस इज जस्ट समथिंग, बिकॉज मैं कभी इंजर हुई नहीं उससे पहले. उससे पहले क्या होता था, पुल हो गया कोई मसल वगैरह, इट्स गोना बी फाइन इन अ फ्यू डेज. लेकिन दैट was like quite long, and then I got it checked and I was like, oh, I'm out. Damn. It was very sad. Lekin I learned a lot again. So कितनी देर के लिए you were Everything out? happens for a reason. For 8 months. Damn, damn. Yeah, अब तो I फिर was- रिकवर हो गया ना माशाल्लाह. Alhamdulillah. परफेक्ट परफेक्ट. अनुषी, I'm कमिंग back. टू एन एंड, हम एंड पे अपने हर गेस्ट से एक पोइट्री, शायरी की 2 लाइनें सुनते हैं. तो यू एज अ नेशनल प्लेयर कोई मोटिवेशनल पोइट्री या कुछ भी आप जरूर सुनाओ. This is something I just made it up, like because I play as well. So I'm just gonna say, football is not just a sport for me. It's a remedy. It's my whole life. Oh, that's That's it. great. That's great. Thank you so much, Anushe, No for problem. taking out time and coming to the local podcast. उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा. पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़.